तेलंगाना महकमे तवानाई के सेक्रेटरी संदीप कुमार ने कहा कि हर शहरी को आलूदगी पर काबू पाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। संदीप कुमार ने तेलंगाना स्टेट काबिल तजदीद तवानाई वसाइल डेवलपमेंट कारपोरेशन के ज़ेर एहतमाम MCHRD में रियासती तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ अवार्ड्स बराए साल 2020 के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी आलमी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। పాండమిక్ టైం లోపల కూడా మా విద్యుత్ సంస్థలు ఏదైతున్నదో నిరాటంకంగా 24 గంటలు కూడా మేము అన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారి మానిటరింగ్ లోపల మినిస్టర్ గారి సపోర్ట్ తోటి ఒక టీం వర్క్గా పనిచేసి మేము చాలా కష్టపడ్డారు మా వాళ్ళు కూడా. సో దాంతో నిరంతర కరెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు ఇందాక అడిగినట్టు ఉద్యోగుల విభజన గురించి శాయశక్తులా మేము కూడా పోరాటం చేయడం జరిగింది. మేము మా ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులందరూ కూడా. బట్ అల్టిమేట్గా సుప్రీంకోర్టు ఏదైతున్నదో డైరెక్షన్ ఇచ్చింది. ధర్మాధికారి గారి వాళ్ళు 1 మ్యాన్ కమిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పి ఒకసారి సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎవరిని కూడా చేయగలిగింది లేదు. కొన్ని దాంట్లో సాధక బాధకాలు కూడా ఉన్నవి. అయినా కానీ మేము ఇన్ టోటో ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందో దాని ప్రకారంగా ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ కూడా మొదలుపెట్టినాము. రేపు మండే ఆర్ ట్యూస్డే లోపల ఆర్డర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. కానీ ఎవరు కూడా నిరుత్సాహపడవద్దు. That we have to optimize the use of energy, we have to remove the waste of energy, and these are the things if we do on a day-to-day basis, on a life cycle change, some better practices in our day-to-day life, we will all become contributor to the energy efficiency in the country. And this is what we have to do. Like just now ప్రభాకర్ రావు గారు చెప్పారంటే ఒక్క యూనిట్ మీరు సేవ్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ సేవ్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.2 యూనిట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సో ఎనర్జీ సేవ్డ్ ఈజ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఏమవుతుంది మనం ఇప్పుడు అవర్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. సి ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పారామీటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్. హౌ మచ్ ఎనర్జీ యూ ఆర్ కన్జ్యూమింగ్, వాట్ ఈస్ ద పర్ క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. లెట్ us say you compare with China or United States of America, we have maybe 1/5 of them in per capita consumption. It means our development parameter is little less. So we are going to consume as in way we develop, our GDP increases, our per capita income increases, we are going to consume more and more electricity. When we are going to consume more and more electricity, is it that we are going to burn more and more fossil fuel? Is it that we are going to waste more and more energy? So these are the things we have to answer ourselves. We have to ask this question to ourselves. We have to ask this question to the younger generations, and we have to answer ourselves. So we have to be efficient. We have to be more and more consumer of energy, but as a responsible country. We should not add to the carbon footprint. The number one, we should not contribute on ourselves adding to the carbon footprint. तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय आज मुत्तहदा महबूब नगर के दौरे पर हैं। संजय ने जड़चल्ला, नारायणपेट और दीगर इलाकों का दौरा किया। पार्टी कारकुनों ने रैली निकाली। इस मौके पर बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा और दीगर मौजूद थे। संजय ने पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी कारकुनों को इलेक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। तेलंगाना के जिला महबूब नगर के बीजेपी सदर A शेखर मुस्ताफी हो गए। बताया जाता है कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी से मुबैयन अख्तिलाफात के बाद उन्होंने पार्टी से मुस्ताफी होने का फैसला किया और मीडिया को इस बात से वाकिफ करवाया। उन्होंने एक लेटर जारी करके पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना बीजेपी सदर आज महबूब नगर दौरे पर हैं। इसी दौरान जिला सदर का ओहदा छोड़ना पार्टी के अंदर इख्तिलाफात को जाहिर कर रहा है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने पैरा स्पोर्ट्स के बारे में शऊर उजागर करने के मकसद से आदित्य मेहता फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्फेंट्री राइड का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में अदाकारा मंचू लक्ष्मी, मॉडल शिल्पा रेड्डी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। वाज़ेह है कि 19 नवंबर को कश्मीर से शुरू हुआ सफ़र हैदराबाद पहुंचा। गवर्नर ने मुबारकबाद दी। पैरासाइकिल सवार 31 दिसंबर तक AP, कर्नाटक और तमिलनाडु के रास्ते कन्याकुमारी पहुंचेंगे। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि वो कोविड की वजह से किसी भी तकरीब में शरीक नहीं हुई। उन्होंने माजूर अफराद की सताइश की। Say them disabled, not even specially abled, they are super abled. That's all the word I can say. There are superstars we know, but super abled
people are here. So you teach us, because we are all with all full form, but you teach us how to be confident in facing the challenging situation. All that we have, encouragement, and that pushes us further to achieve, just not for themselves, but for our country. Some of the athletes here have won medals that most able bodies haven't been able to do so. So I am no member, I am no trustee, but a big supporter. And I hope this Infinity Ride again leads you to the infinite possibilities that you dream for this foundation, and creating awareness and raising funds. Awareness we have a lot of, we could use some more of the funds. So dig deep in your pockets, support a cause that is beyond and bigger than you, so we can all live a life of dignity. Because just because you lose an arm or a leg or something that happens in your life doesn't need to stop you from living the life that you fully dream for yourself. Come together and let's continue to support such a great cause. And Aditya, wishing you all the very best and a smooth ride all the way until. हैदराबाद के प्रशांत नगर में केकेआर नामी चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। तकरीबन 300 अफराद ने कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का धोखा देने का इल्जाम आयद किया है। मुतासरीन का कहना है कि कंपनी इंतजामिया उनके रकम वक्त पर लौटाने में नाकाम रहा। मुतासरीन ने इंसाफ की मांग करते हुए कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन पर एहतजाज किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई के ओहदेदारों ने एक शख्स के पास से सोना जब्त किया। ये सोना दुबई से गैर कानूनी तौर पर लाया गया था। ओहदेदारों ने इस शख्स को हिरासत में लेते हुए उससे पूछगछ शुरू कर दी है, ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि ये सोना कहां मुंतकिल किया जाने वाला था और किसकी इमा पर इसको मुंतकिल किया जा रहा था। हुकाम ने 373 ग्राम सोना जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 19,14,000 बताई जा रही है। वाज़ेह के हालिया चंद महीनों के दौरान एयरपोर्ट पर सोने की जब्ती के वाक़यात में इजाफा हुआ है। वरंगल रूरल के नरसमपेट मंडल में सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक खानदान के 6 अफराद जख्मी हो गए। बेकाबू कार दरख्त से टकराने से हादसा पेश आया। कार में सवार तमाम अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। मकामी अवाम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जिला रंगारेड्डी के चेवड़ा में मारुति स्विफ्ट कार ने बाइक सवार को टक्कर दे दी। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और बाइक जलकर राख हो गई। कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। इसी दौरान रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का काफिला उधर से गुजरा। रियासती वजीर एम्बुलेंस तलब करके जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी है। और आइए इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं मगरबी बंगाल। अमित शाह दौरे पर हैं, मीडिया से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। कैंपेनिंग के खिलाफ नहीं कर सकती, ये कहां की सोच है? हर पार्टी ने करना चाहिए। आप भी करो भाई, कांग्रेस भी कर सकती है, कम्युनिस्ट पार्टी भी कर सकती है। हम कैंपेन भी ना करें? मैं नहीं मानता है लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप। पीछे मैंने कहा तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो फेडरल स्ट्रक्चर के रिश्तों को डिस्टर्ब करता है। ऐसा कुछ हो तो उन्होंने नियमों को कोट कर बात करनी चाहिए। पल्लवी, अगर तय हो जाएगा तो अनाउंस कर देंगे। पार्लियामेंट्री बॉडीज के निर्णय करता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकता। पीटीआई फार्मर्स से आपने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट दौर की बातचीत हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिन? मैं 2 दिन से आया हूं, मगर कुछ तय हुआ है वहां पर। नरेंद्र सिंह जी के साथ बातचीत का कोई समय तय हुआ है।
कल या परसों का, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं। छोटा सा, जहाँ भी जाते हैं तो जो सबसे ज्यादा आपकी रैली में लाउड स्लोगन मिलता है वो जय श्री राम। आपको लगता है कि वो बाकी जगह वो स्लोगन मंदिर के साथ जोड़ा जाए, यहाँ वो स्लोगन टीएमसी को टारगेट करने का ज्यादा? नहीं, ये देखिए, स्लोगन कोई नेता या पार्टी नहीं बना सकती, जनता बनाती है, और ये सवाल आपने जनता को पूछना चाहिए। नहीं, देखिए, जब पूरा इकोसिस्टम बिखर जाता है तभी ये प्रॉब्लम खड़े होते हैं। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिक जॉब मिलते हैं, अगर एजुकेशन ठीक है तो लड़के राज्य के बाहर जाकर, लड़कियां राज्य के बाहर जाकर भी जॉब लेती है, अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो जॉब जनरेट होती है, अगर पोर्ट ढंग से काम करते हैं, पोर्ट के अंदर दादागिरी नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, पोर्ट के अंदर माल की आवाजाही होती है तो ऑटोमेटिक जॉब जनरेट होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम अगर कोई सरकार ठीक कर लेती है तो अपने आप जॉब जनरेट होते हैं, और मुझे भरोसा है कई राज्यों में परिवर्तन आए हैं, यहाँ पर भी आए हैं, जो 80 आएगा। 80 के दशक में जो बीमारू राज्य माने जाते थे, आज वो बीमारू नहीं है। आप देख रहे थे अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर और मीडिया से मुख्तलिफ सवालों के जवाब वो दे रहे थे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।